we have with us Mrs. Shweta, who has come to inquire about how to take a Polykids franchisee. Hello, Mrs. Shweta. Good afternoon, sir. So there are a few questions which I need to ask regarding the franchisee. So first of all, if you could just help me with the initial franchisee fees and what does it cover? Okay, let me ask you first something before that. I want to know something about you. Are you from education line? Have you opened up a school any time before? Have you taught in any school? Like what is the background like? Why do you want to open up a school? Right, so it's like I have more interest in opening my preschool. So I have not, I haven't started any of the franchisee as of now. But it's my passion that I need to start off with my own business. And this kids, if we talk about kids, so I'm being a mother and I feel like, when I have started teaching my child, so this came to me that, this is the interest that I have developed in myself. So just taking this into consideration, I want my own franchisee to be started. So this is how I have built my interest in it. I'll tell you, there are lots of ladies who are sitting idle at home, who are well educated and just housewives, and they feel like they have done so much education and they are not doing anything in life. Why they have studied or why they have done so much education for so many years, 15, 16, 18, 20 years, and then still cooking food at home and doing nothing. So that is one thing where I feel a lot of females feel like they are on the back foot because they are not doing anything in life. That is one reason I feel they should come forward. The second reason is every time a female feels like she has to ask for the money from her husband. Absolutely. And how many times you are going to ask? Some husbands are very generous, some are not, and it becomes then. No, it's a self-respect. This is what I believe, that if you have studied that much and after getting married you still have to ask for money from your parents or from your spouse. So this hurts your ego. This is the first thing. Yeah. And they know that if we have the potential to move further, right? If we have the potential to build our own business or we can earn, so why not go ahead and take a step forward for that? Yes, because two things are there. Once when you are doing something on your own, it develops your own self-confidence, number one thing. Then you are earning on your own, you don't have to wait for somebody to pay off your bills or your requirements. Number three thing is, especially when you are opening up or running a preschool, it gives a very good image in the society. That is a reputable and respectable profession where you work into, and you are also enlightening up or imparting, giving knowledge to the little ones, the future of India. So I believe this is one field where ladies should come forward to venture, not full of your days involved, only half of your days involved. Absolutely. And the Work-life second, balance is, yes, and then you can use the second half for whatever your works are there, other things are there. I have personally seen there are lots of ladies, husbands are busy in their either business or they are going out for service. If they are stationed outside in some different city, they are traveling maybe many days in a month or something like that. And the ladies, they are not doing anything, and at one point they go into a depression state. And this is the problem I have seen across lots of females. And then they are taking pills for antidepressant and all those things to come out, to recover. And I believe that if we keep our mind engaged and we are doing something fruitful, then not only are we doing something for the society, but for our own mental health also we are working and doing something. Right? Now I'll come up to your question, of course. So now coming up to the point कि आपने पूछा कि भाई
कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू करोगे, कोई मे बी आप फ्रेंचाइजी लेते हो किसी स्मॉल रेस्टोरेंट की, जिसका आपने छोटी सी शॉप शुरू करते हो, या कोई भी बिजनेस, आपको क्या लगता है कितने पैसे इन्वेस्ट होते हैं? प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा जाए तो 30 लाख की तो आपकी शॉप ही आएगी। 30 लाख, फिर उसके अंदर आपका थोड़ा सा इंटीरियर होगा, फिर रॉ मटेरियल आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगी, तो दीज विल कम अप टू अराउंड 50 लाख एक छोटा सा बिजनेस रन करने के लिए। प्रॉपर्टी भी आपका डिपेंड करता है आप कहाँ ले रहे हैं, कहाँ ले, ठीक है, इट विल वेरी। हो सकता है आप किसी मॉल में चले गए तो करोड़ में आ गई, ठीक है ना, और आपने कहीं रेंटल पे ली तो उसका रेंट कितना होगा, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वी डोंट नो। और आपका कम से कम कोई भी फ्रेंचाइजी ब्रांड की आप लेते हो, स्मॉल फूड आउटलेट या कुछ भी लेते हो, आई थिंक नॉट लेस देन 8 to 10 lakhs मिनिमम, ये तो रहेगा ना। प्लस देन यू हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, उनको रखना, खराब हो गए तो फिर आपका नुकसान, isn't it? And then you have to start from morning and go right up to evening. रात को अगर लगता है कि नहीं यहाँ पे इवनिंग के टाइम ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, टिल इवनिंग 7-8 o'clock you have to be there and you have to see, or even 9 o'clock कि आपकी जो है वो कैसे चल रहा है आउटलेट, राइट? एंड देयर इज नो गारंटी कि today you will have good business, tomorrow what you will have, or day after tomorrow what you will have, right? See, a preschool franchisee setup normally takes from 8 to 10 lakhs, a good preschool franchisee, ठीक है। इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पहली चीज़ तो कि इन ऑल अदर बिजनेसेस, जो भी बिजनेसेस होते हैं, यू फर्स्ट डिलीवर एंड देन यू गेट द मनी। आई मीन टू से आपके रेस्टोरेंट में कोई आएगा, खाना खाएगा और उसके बाद पेमेंट करेगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू कीप योर रॉ मटेरियल रेडी, यू हैव टू कुक को भी रखोगे, सारी चीज़ें रखोगे, एंड देन अगर खाना अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वो एक बार आएगा, दूसरी बार शायद नहीं आएगा, तो यू डोंट नो द whether that customer is going to come back again or not. It is very fluctuating, unreliable. किसी को हो सकता है टेस्ट अच्छा लगे, किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लगे। When we come to preschool, पहली चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें एडवांस में मिल जाती हैं। You get your fees in advance, so depends आपका वहाँ पर अगर सिस्टम ये है कि आपको पूरे साल की फीस लेते हैं तो फुल ईयर का आपको एडवांस में मिल जाती है, क्वार्टर का है तो क्वार्टरली एडवांस फीस मिल जाती है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दोज 3 months or this period to pass away that you will get a money. So once you get the cash flow in hand, it becomes very easy to manage the expenses, right? आपने 8-10 लाख रुपए आपके लग गए, जिसमें आपका फर्नीचर हो गए, फिक्सचर्स हो गए, इंटीरियर्स हो गए, एंड जिसमें और अब इसमें इंटीरियर्स हो गए, आपके फर्नीचर्स हो गया, देन वी हैव मे बी स्मार्ट क्लास, मतलब उसके लिए फिर हम स्मार्ट टीवीज रखते हैं, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, स्टेज हो गया, डिफरेंट टॉयज़ हो गए, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्री स्कूल सेटअप में ज़रूरत होती है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांड जो आके कहेंगे सर हम आपको 1 लाख रुपए में भी खुलवा के दे देंगे, हम आपको 2 लाख रुपए में प्री स्कूल खुलवा के दे देंगे, एंड खोल सकते हैं आप, नोबडी इज़ देयर टू स्टॉप यू कि भाई आपको पता है कि जितना आप शक्कर डालोगे उतना ही मीठा होगा। अब आपको 1 लाख में या 2 लाख में एक स्कूल तो ऐसा है, वो कहते हैं 25,000 में भी हम आपको फ्रेंचाइजी खुलवा के दे देंगे। चॉक एंड डस्टर करके हैं 25,000 में। आई स्कूल इज आल्सो वन। हाँ, सो आई स्कूल, सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, मतलब डू यू वांट टू गिव अ गुड एजुकेशन और यू वांट टू गिव अ सब स्टैंडर्ड एजुकेशन। चेयर ऐसी होंगी कि बच्चे बैठेंगे और वो हो सकता है 2 महीने में टूट जाए, हैं, देखने के लिए 2-4 टेबल्स दे देंगे वो आपको, और आपके जो टॉयज़ होंगे वो ऐसे होंगे कि भाई आपने देखने के लिए लगा दिए थोड़े बहुत, तो ऐसे तो कोई भी दे सकता है, हम भी दे सकते हैं, मतलब वी कैन ऑल्सो गिव यू द सेम स्टफ एंड से कि हाँ जी आपका स्कूल खुल गया, आप रेडी टू गो, जाओ करो। लेकिन
आप वो 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करके प्लस उसके बाद जब आप स्कूल चलाते हैं उसमें रिकरिंग कॉस्ट होती है, आप टीचर्स हायर करोगे, उनको सैलरीज दोगे, फिर आपके कुछ एडवर्टीजमेंट करोगे, उसमें पैसे लगते हैं, जिस भी प्रॉपर्टी में आप स्कूल खोलोगे, प्री स्कूल खोलोगे, वहाँ का रेंटल्स दोगे। तो आपने उनसे 1-2 लाख रुपए में आपने स्कूल की फ्रेंचाइजी ले ली और पता चल रहा कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में आपने शुरू तो कर दिया और बच्चे आपके हुए, पास हुए 5-6, कई केसेस हैं जिसमें मैंने देखा है कि पूरा साल स्कूल चलता है और 5-6 बच्चे ही होते हैं। एंड देन यू फाइंड कि आपने एक्सपेंसेस जो कर दिए ड्यूरिंग दोज 7-8 मंथ्स, आपने पता चल रहा है 3-4 लाख रुपए आपने और खर्च कर दिए, ज़्यादा ही कर दिए, 5-6 लाख रुपए खर्च कर दिए। यू लैंड अप इन द सेम पोजिशन एंड स्टिल होपलेस कि अब क्या करें, या तो हम ये नेगेटिव खर्चे आगे सस्टेन करते चले जाएं या हम स्कूल को क्लोज अप करके और आज बोलते हैं भाई थैंक यू, अब हमारा जो चलाने का शौक है वो ख़त्म हो गया और हम इसे बंद कर देते हैं। सी देयर आर ब्रांड्स हु आर selling up the franchises in very small amounts because they don't want कि वो जो फ्रेंचाइजीज है वो लॉन्ग टर्म चले, उनको खाली खोलने से मतलब है। आपको 1 लाख रुपए में उन्होंने कुछ सामान दे दिया, उसमें उनके 25,000 बच गए या 30,000 बच गए या और ज़्यादा बच गए, जो भी बच गया वो उन्होंने पॉकेट में रखा, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बाद में लोग कॉल भी करते रह जाते हैं और उसके बाद नोबडी पिक्स अप द कॉल ऑल्सो एंड नोबडी आंसर्स द कॉल। तो I feel like if we have to move in a long term, तो हमें पहली चीज़ कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब कोई पेरेंट्स अंदर आपके प्रेमिसेस में घुसें तो उन्हें लगे कि नहीं, ये हमारी राइट प्लेस है बच्चे को एजुकेशन देने के लिए और उनको किसी भी तरह से कोई कमी नज़र ना आए। दूसरा चीज़, आपका स्टाफ इतना वेल ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड हो कि उनको लगे कि हाँ, इस जगह पे मेरे बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी होगी। तीसरा, उनको जो आपके स्टाफ हो या आपके जो भी फ्रेंचाइजी है उनको इतना अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि दे शुड नो हाउ टू कन्वर्ट द इंक्वायरीज। अगर आपके हमने 3-4 महीने के अंदर इनफ बच्चे कर दिए और उसमें अगर आपकी ब्रांच प्रॉफिट में आ जाती है, यू विल बी मोर देन हैप्पी टू रन अ ब्रांच। We expect कि within 6 months the branch should come at par and after 6 months the branch should be in a profitable condition. तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपको थोड़ा सा ही सामान दे देंगे, who will come? आप खुद सोचिए कि आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए और आपको वो बोलेंगे कि जी आपको ये मैंने 10 शर्ट दिखा दी, आप देख लीजिए, तो आप बोलोगे और कुछ नहीं है। और आप दूसरी शॉप पे जाएंगे जहाँ पर कि आपको बहुत वैरायटी मिलेगी, अच्छा एम्बियंस मिलेगा, है, तो आपको लगेगा नहीं, यहाँ पे मैं बेटर है कि यहाँ से एक अपने लिए शर्ट खरीद लूँ या कोई भी चीज़ ले लूँ। आपको बैठने की सुविधा है, आपके जो आपके लोग हैं वो वेल मैनर्ड हैं, अटेंड कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से। सो दैट इज़ अ डिफरेंस विच एम्बियंस मेक्स। तो सस्ती चीज़ के लिए जाके तो आप एक बार जाके आप पैसे बचा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आप ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे। आप थोड़ा सा महंगा लेके एक बार शुरू करेंगे और उसके बाद जो फर्दर आपके एक्सपेंसेस है ना, अगर आपके 5 एडमिशन्स भी आपके फर्स्ट मंथ में हो गए, हमने एक अच्छा इवेंट किया, 10-15 एडमिशन्स हो गए, तो आप ये मान के चलिए कि एक एडमिशन से इवन देहरादून वी चार्ज नियरली अराउंड 50,000 रुपीज़ पर एडमिशन। तो आपके 10 एडमिशन हो गए तो 5 लाख रुपए तो आपके वैसे ही कंफर्म हो गए कि ये 5 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका थोड़ा लोकेशन दूसरी सिटी में है जहाँ ज़्यादा फी नहीं है। तब भी आपने अगर 30-40,000 आप एक एडमिशन से ले रहे हो तो आपके 4 लाख रुपीज़ हो गए। तो आप देख सकते हो कि फ्रॉम डे 1 यू आर ऑलरेडी इनटू अ पॉजिटिव थिंग एंड देन आप उसी से एक्सपेंसेस निकालते चले जाते हो, आपके खर्चे निकलते चले जाते हैं और
ओवर अ टाइम यू विल फाइंड कि आपका इनकम बिकम्स मोर देन योर एक्सपेंसेस और उस टाइम पे आप प्रॉफिट्स में आ जाते हैं। सो आई बिलीव कि आपको इनिशियल फ्रेंचाइजी फी को इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए कि इसमें ये रहने दो, ये कट कर देते हैं, सस्ते में मिल रहा है, 2 लाख में मिल रहा है, 1 लाख में मिल रहा है। आप सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए कि वो 2 लाख वालों के कितने सेंटर्स ऐसे हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा चल रहे हैं। आपके 2 लाख वालों के कितने सेंटर्स हैं जो लॉन्ग टर्म चल रहे हैं और कितने सेंटर्स हैं जो बंद हो गए हैं। हमारा तो कोई भी सेंटर बंद नहीं हुआ है, तो वी हैव 100% रेट कि जो खुले हैं वो चल रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। तो आप वो चाहेंगे कि हाँ इनकी 100 ब्रांचेज हैं, 500 ब्रांचेज हैं, इतनी हैं, या आप ये चाहेंगे कि अगर इनकी ब्रांचेस अगर कम भी हैं बट दे आर डूइंग गुड, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सुपर 30 इसलिए फेमस था क्योंकि उनके 30 बच्चे वो ट्रेन करते थे IITs के लिए और 30 के 30 IITs में निकलते थे। हमारी अगर 30 ब्रांचेज हैं और ऑल 30 आर डूइंग गुड, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन हैविंग 300 ब्रांचेज एंड यू फाइंड कि 250 आउट ऑफ देम आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मीट, या कुछ ऐसी हैं जो कि क्लोजर की कगार पे हैं। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारा जो फर्स्ट मंथ का टारगेट है 10 एडमिशन्स, 15 एडमिशन्स, तो ये वाला टारगेट को अचीव करने के लिए मतलब हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसको? वेरी गुड क्वेश्चंस कि आपने स्कूल खोल लिया, रेडी कर लिया, एंड हाउ टू गेट द एडमिशंस डन। सी आई टेल यू देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स व्हिच फ्रेंचाइजीज डू, मींस people who open up the schools on their own or without any experience they do। क्योंकि हम लोग का जब एक्सपीरियंस होता है तो हमें पता है कि कहाँ पर किस जगह पैसे खर्च करने चाहिए, किस जगह आपके पैसे खर्च करोगे तो वो वेस्टेज हो जाएगा। मैंने अभी आई वॉज लुकिंग एट द बोर्ड ऑफ वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने यहाँ पूरे देहरादून में सब जगह बोर्ड्स लगा दिए और बोर्ड में दूर से बड़ा बड़ा दिख रहा है नाउ इन देहरादून एडमिशंस ओपन, और जो इंस्टीट्यूट का नाम है ना वो इतना छोटा सा ऊपर है कि आदमी दूर से जाएगा, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई कार में जा रहा है, तो उन्हें ये दिख गया नाउ इन देहरादून एडमिशंस ओपन। लेकिन कहाँ, वो तो बहुत पास में जाके जब देखेगा कि ओहो ये इंस्टीट्यूट है, दिस पर्सन वेस्टेड सो मच मनी इन द बोर्ड्स ही हैज इंस्टॉल्ड, कि लोगों को ये तो पता है कि हाँ एक बोर्ड लगे हुए हैं नाउ इन देहरादून एडमिशन ओपन, लेकिन किसके हैं ये पता ही नहीं है, फ़ोन नंबर क्या है ये पता ही नहीं है। तो आपने पैसे अपने वेस्ट करके यू हैव जस्ट ड्रेन्ड देम इनटू द, मतलब पैसे बहा दिए आपने। तो आपका उल्टा होना चाहिए था, वहाँ पे ब्रांड नेम नाउ इन देहरादून नीचे बड़ा सा आता ये आपका ब्रांड एडमिशंस ओपन, तो देख के आदमी याद रखता अरे हाँ इनके बोर्ड है, ये ब्रांड है। अब वो ब्रांड इतना छोटा हो गया। देन कुछ जगह ऐसे होते हैं कि आपको मार्केटिंग में बोर्ड्स यूज़ करने हैं, कहीं पर डिजिटल मार्केटिंग काम करती है, कहीं पे आपको टाइप्स होते हैं डॉक्टर्स के साथ, कहीं पर ऐसा होता है कि हमें टॉय शॉप्स के साथ टाइप्स करने पड़ते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिसके ऊपर हम अपने फ्रेंचाइजीज को ट्रेन करते हैं, कहाँ पर कैसे करना है। ऑनलाइन लीड्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, लोकल लेवल की मार्केटिंग फ्रेंचाइजीज करते हैं अपने लेवल पे, एंड वी विल गाइड देम कि आप किस समय क्या क्या कीजिए। हमारा यहाँ FM में भी ऐड चलता है, रेडियो FM वगैरह में, बट दैट इज़ फॉर द ब्रांडिंग पर्पस। तो और मेन फोकस क्या है कि आपके जैसे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस दिन होना चाहिए हफ्ते में, और क्या पेपर में होना चाहिए, डोर टू डोर होना चाहिए, क्या कॉस्टिंग्स आनी चाहिए, कोई वेंडर आपसे ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं ले रहा है, क्या प्रिंटिंग कॉस्ट होनी चाहिए, ये डिज़ाइंस क्रिएटिव सब हम प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आपकी जो फ्रेंचाइजी है उनको मिनिमम कॉस्ट में दे गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। सो दैट इज़ द एडवर्टीजमेंट सपोर्ट वी प्रोवाइड टू देम। डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एड्स, एवरीथिंग इज फ्रॉम आवर साइड। तो हम जैसे बेबी शो हो गया या कोई इवेंट किया है हमने,
तो उसमें क्या क्या करना है, किस तरह के कॉम्पिटिशन होने हैं, एंकर कौन होगा, किस तरह के अट्रैक्शंस होने चाहिए, या हमें स्टॉल्स में किस किस चीज़ के स्टॉल्स होने चाहिए, या फन गेम्स क्या हो सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स वी गाइड द फ्रेंचाइजीज कि इस तरीके से करो, सो दैट यू गेट मैक्सिमम एडमिशन्स ड्यूरिंग दैट बेबी शो, ड्यूरिंग द इवेंट जो भी है. फिर एक पीरियड होता है एडमिशन का, पीक पीरियड, लेट्स से February, March, April, that is the peak month for admission. ऐसे ही जुलाई अगस्त भी होते हैं, पीक मंथ होते हैं, या फिर नवरात्रों का टाइम होता है जिसमें काफ़ी एडमिशन्स कराते हैं. सो दीज आर द टाइम वेयर आई फील लाइक उससे पहले अगर ब्रांच खुल जाती है, दे विल टैग ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज एंड दे विल गेट अ बेटर ग्रोथ रादर देन इन द स्लम मंथ्स, जिसमें अगर सपोज आप दिसंबर में खोल लेते हो तो फाइन की वेकेशंस हैं, ठंड इतनी है, पेरेंट्स बोलते हैं इतनी ठंड में बच्चे को क्यों भेजें. तो या आपने जून में मई में खोल दिया और फिर जून इज़ अ वेकेशन मंथ. तो डिपेंड्स कि आपका साउथ में जून में स्कूल शुरू होते हैं फॉर देम. जून इज़ द राइट पीरियड टू स्टार्ट बिकॉज आपके न्यू एडमिशन जून से आने शुरू हो जाते हैं. नॉर्थ में मिड मई से वेकेशंस शुरू हो जाती हैं. देन जुलाई इज़ अ गुड मंथ, but no problem that June July is a combined month, so that can be considered for opening. But these are the small things which we must keep in mind so that you get maximum admissions in the school. कितने डिस्काउंट्स देना चाहिए, क्या ऑफर देना चाहिए, क्या रेफरल सिस्टम होती है, क्या इंटर ब्रांच ट्रांसफ़र फैसिलिटी होती है जिसकी वो यूज़ कर सकते हैं. So all these are the things which we train the people. Who will incur the cost of the events? Events, like you said, right? Just to attract admissions, there are certain events which a franchisee need to perform. The baby show or any competition. So See, that whatever events are there locally at the branch, that is at the branch level, वो franchisee अपने आप करते हैं. We will guide them, ठीक है ना? But we will guide them, we will provide them all the support. लेकिन डिपेंड करता है. कोई कहता है कि मैं तो सर 2 लाख रुपए खर्च करके और मैं एक बड़ा ग्रैंड इवेंट करना चाहता हूँ. कोई कहता है सर आई हैव अ बजट ऑफ ओनली 50,000 इन विच आई वांट टू प्लान आउट द इवेंट. सो वी सपोर्ट देम, वी गाइड देम कि उनका क्या बजट है, सो दैट अकॉर्डिंगली दैट इवेंट कैन बी प्लान्ड एंड इट कैन बी. So the planning part is done by the head. Yeah, that we do from our side. Okay.